Hello students, I Sushma Kataria from Surya School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the 12th class syllabus chapter number 5 Indigo by Louis Fisher. As you know that in our previous video we have discussed that Gandhiji signed a receipt which he wrote he would not obey the order, and because of that reason he have to summon as to appear in the court. Clear? But after some kind of difficulties, the court free him completely, and the things was the he was not blamed for not following the rules, because the British authority completely aware about the fact that if they do something with Gandhiji, then definitely the public will revolt and public will react in a very different way, and it is not easy for them to control the public. Clear? So because of that reason they take the Gandhiji's help to regulate the crowd, because when the Indians came to know that he is about to submit in the jail, and after that they just went there, they just start moving towards the jail. But the British authority said that you are not you have to help us to control the crowd and to manage the law. So next, when he being free, he went to go Rajendra Prasad, and he was also a liar. Some well-known lawyers like Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, and Maulana so help came to Bihar to help and advise Gandhi. Gandhi asked them if he was sentenced to jail, then what would be their course of action. Then senior lawyer replied that if they were to help him out, they would sentence to jail, then they would return back. So actually, he basically want to know that if he go to jail, then what kind of thing they are able to help their peasants. Clear? So they said that if the Gandhiji is forward towards the jail, they definitely will be followed by them. Clear? Next, when Gandhi asked them about the sharecroppers who were facing unfair, Rajendra Prasad and other concluded that if Gandhiji could go to jail, the other people of their area, although he was a stranger, then they would be also follow him, and always claimed to serve the peasant and fought their legal battle too. दे डिसाइड दैट इफ गांधी जी दे विल फॉलो टू. अब देखो सिंपल इसमें क्या दिखाया है कि गांधी जी ने एक तरह से पूछा कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो शहर क्रॉपर्स के साथ क्या उनका क्या हर्ष होगा, या फिर उनके साथ किस तरह से हम उनके हेल्प कैसे कर पाएंगे. तो अदर जो थे काउंसिल्स थे, उन्होंने कहा था कि वो हम डेफिनेटली उन पेजेंट्स को लीगली हम उनके साथ उनकी बैटल में डेफिनेटली हम उनका साथ देंगे, और जैसा ही आप चाहते हैं वी विल फॉलो द सेम. और अगर आप जेल में भी जाते हैं तो हम एक तरह से एक्चुअली बेसिकली वो सत्याग्रह टाइप में वो करना चाहते थे कि अगर मैं जेल चला जाता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट हूँ, ब्रिटिश अथॉरिटी के, जो उन्होंने पीजेंट्स के साथ किया हुआ है. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो लॉयर्स हैं, क्योंकि उन्होंने उनको डांट दिया था कि अगर जैसे इन द वेरी स्टार्टिंग जो लॉयर्स उन्होंने क्या कहा था दैट बहुत हाई डिमांड किया था फीस का, बिकॉज इफ़ दे वांट टू फाइट द केस द पीजेंट्स हैव टू पे अ हाई फीस फॉर टू देम. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो गांधी जी हैं उन्होंने उनको स्कोल्ड किया था लॉयर्स को कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू हेल्प योर इंडियन पीपल दैट मीन्स यू आर नॉट able to consider as pure इंडियन. सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो लॉयर्स थे वो कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं गांधी जी की उस थॉट को लेकर, और उन्होंने कहा कि वट एवर द कंडीशन इज़ हम हर तरीके से अपने इंडियन पीजेंट्स जो ब्रदर्स हैं उनकी हेल्प करेंगे टू फाइट द बैटल इन कोर्ट. क्लियर? सो on hearing this, Gandhiji said that their struggle for Champaran peasants have been won. Divide the group into two pair and two made the sequence in which they had to volunteer
सरेंडर इन द कोर्ट। अब समवेयर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि हम दो तरीके से हम अपने आप को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, जिसमें कि पीजेंट्स जो होंगे, पीजेंट्स भी होंगे और लॉयर्स भी होंगे और गांधी जी भी होंगे। हम अपने आप को सरेंडर करेंगे कि हमने अगर कुछ गलत किया, बिकॉज उनको क्या कहा गया था कि अगर वो एग्रीमेंट को डील नहीं कर रहे हैं, एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स समवेयर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको फॉलो नहीं करो तो आप कहीं ना कहीं उस लॉ को ब्रेक कर रहे हो। क्लियर। तो जब उन्होंने विलेजर्स को बोला, पीजेंट्स को बोला कि डोंट फॉलो द एग्रीमेंट और अपने आप को सरेंडर करो टू फिल द जेल, वो कहते हैं जेल भरो एक तरह से, वो वाली कंडीशन थी। और उन्होंने दो ग्रुप्स में अपने पोर्शन, अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप अगर अंदर चल जाता है तो बाहर से जो दूसरा ग्रुप है वो कहीं ना कहीं उनके राइट्स के लिए फाइट करेगा अगेंस्ट द ब्रिटिशर। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी वॉज अडॉप्टेड बाय द गांधी। आफ्टर सम डेज the magistrate sent a letter to Gandhi in which he was written the case against him had been taken back। एक जो केस था उनके अगेंस्ट कि उन्होंने सम्मन को एक्सेप्ट नहीं किया था और एक रिसिप्ट उनको दे दिया गया था, तो वहाँ पे, और जिसके लिए उनको जेल में अपीयर होना था, तो उस केस से उनको कम्प्लीटली आज़ाद कर दिया गया और वो केस को वापस ले लिया गया। एक्चुअली जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरीके से गांधी जी को हार्म करे, क्योंकि अगर वो गांधी जी को हल्का भी हार्म वगैरह होता है या कुछ कंडीशंस उनके साथ बेकार होती हैं या बुरी होती हैं, देन डेफिनेटली जो इंडियन है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द British authority. So taking all these things, they just free the Gandhi from that case. It was for the first time in modern India that the peaceful protest against the government had been won. क्लियर। जैसे उन्होंने क्या किया था कि जैसे उन्होंने जेल भरो आंदोलन एक तरह से चला लिया था उस चंपारण कंडीशन में। सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो गवर्नमेंट है बिना किसी भी वायलेंस के उन्होंने कहीं ना कहीं जैसे गांधी जी को फ्री कर दिया, उनके जो पीजेंट्स है उनको फ्री कर दिया कि भाई हाँ नहीं ठीक है, इट्स नॉट योर मिस्टेक, वी आर जस्ट डूइंग योर गोइंग यू फ्री। ओके, सो यहाँ पे एक तरह से बिना कुछ करे एक तरह से उन गांधी जी को लगता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ विक्ट्री ओवर द इनजस्टिस। Gandhi and other lawyers carried on with an in-depth investigation into the injustice with the farmers. Statements of about 10,000 peasants who are recorded and various documentary proof were collected. The landlord protests. ओके, सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने जितने भी एविडेंस थे, जितने भी एलिमेंट थे, उन्होंने उनको कलेक्ट किया। जैसे मैंने बताया था कि बिफोर दे वेंट टू चंपारण, उन्होंने मुजफ्फरपुर में जाके सारे अथॉरिटीज़ के साथ डीलिंग की थी, जो भी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से उनके साथ उन्होंने डील किया था, उनके साथ जितने भी इंफॉर्मेशन थे उनको कलेक्ट किया। फिर वहाँ पे उन्होंने जो थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स थे उनके स्टेटमेंट्स को लिखा, उनके स्टेटमेंट्स को एक प्रॉपर एक फाइलिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो यहाँ पे एक तरह से उन्होंने क्लियर एक केस पूरा बना लिया था, जिससे कि उन्होंने केस फाइल किया ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ कोर्ट में, कि जिससे उनको कहीं ना कहीं ये हो जाए कि भाई हाँ जो ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ द इंडियन कैन फाइट। हालांकि उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही थी कि क्योंकि जो पहले उनके जो फ्री कर दिया गया था, तो दे हैव द थॉट कि उनके माइंड में ये आ गया था कि कोर्ट के थ्रू ना रहकर भी जो इंडियन हैं वो कहीं ना कहीं उनको उस तरीके से आज़ाद कराया जाए, किस तरीके से कि उनके जो माइंड सेट है कि दे आर नॉट एबल टू फाइट द ब्रिटिश अथॉरिटी। क्लियर। इफ़ उनके फियर को उनके अगर माइंड से हटाया जाए, इट विल बी गुड, इट विल बी मोर बेटर। क्योंकि अभी अगर उनको एक केस में उनको आज़ादी मिल जाती है, एक केस में उनको अगर जस्टिस मिल जाता है, तो समवेयर उनके माइंड से वो उनके माइंड से वो फियर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा कि वो कभी भी ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, एंड दे आर नॉट एबल टू विन द केस। क्लियर। सो उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ों को कलेक्ट किया एंड दे फाइल अ केस अगेंस्ट the landlords. In June, Gandhiji was called by the Lieutenant Governor Sir Edward Gitt. Before meeting him, he met his chief supporter and made a plan for civil disobedience in case he did not return. Clear? So यहाँ पे वो सिविल डिसोबीडियंस वाला आंदोलन था, उसको उन्होंने इन जून में उन्होंने शुरू किया। Gandhiji had 4 long interviews with the lieutenant commissioners, which led to the formation of a commission that inquired him
into the indigo sharecropper situation. That means जब ब्रिटिश अथॉरिटी को जैसे, क्योंकि उन्होंने केस फाइल कर दिया था इन गांधी जी ने अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज़, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि जो इंडियन पीजेंट्स का जो पोर्शन है वो मोर स्ट्रॉन्गर है, बिकॉज ही हैव ऑल द एविडेंट, ही हैव ऑल द ह्यूमैनिटी लेवल कंडीशन. सो समवेयर द लैंडलॉर्ड्स को ये पता चल गया था दे आर अबाउट टू लूज द केस. क्लियर. सो यहाँ पे क्या दिखाया गया कि कमिटी को फॉर्मेशन किया गया और उनको उस चीज़ को, किस चीज़ को, जो पीजेंट्स के खिलाफ, जो पीजेंट्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा था उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको इंक्वायर करने के लिए दे फॉर्म अ कमिटी फॉर द sharecropper situations. Gandhiji remained in Champaran for 7 months. He also made several short visits later. The official inquiry didn't favor the planters. Hence, they agreed to pay back to the peasants. अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ट्विस्ट आता है. क्या है, गांधी जी कम से कम 7-8 महीने तक उसमें चंपारण में रहे थे और छोटी छोटी विजिट्स उन्होंने इधर उधर करी. सो ऑफिशियली इंक्वायर, जैसे मैंने बताया था कि लास्ट में अभी हमने पढ़ा कि एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया. तो इंक्वायरी में ये हुआ कि फेवर जो प्लांटर्स हैं, यानी कि जो उनके फेवर में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्लांटर्स यानी कि पीजेंट्स के फेवर में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये लगा था कि हमें अपनी जो पूरा अमाउंट है वो उनका पे करना पड़ेगा. अभी तक क्या था कि सिर्फ 15% अमाउंट वो पे किया जाता था. क्लियर. लेकिन यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड्स को, जो अथॉरिटीज़ थी, उनको ये कंडीशन अराइज हो गई थी कि दे हैव टू पे द फुल पेमेंट टू द पीजेंट्स. Money lenders thought he would demand repayment in the full of the money, but he asked for only 50% and he decided to his decision was firm. अब देखो मनी लेंडर्स ने क्या सोच लिया कि हमें जो पूरा रीपेमेंट करना पड़ेगा ऑफ द मनी, बट उन्होंने, जो गांधी जी हैं, उनको लगा कि गांधी जी ने सबसे पहले जो डिमांड किया था वो सिर्फ कितने परसेंट का किया था कि हमें सिर्फ 50% ऑफ अमाउंट दे दीजिए, अभी तक का जितना हमारा नुकसान हुआ है, गिव द 50% अमाउंट टू ईच पीजेंट. क्लियर. और उनको लगा था, मनी लैंडर्स को लगा था कि जो गांधी जी हैं अपने डिसीजन पे वो टिके रहेंगे कि उनको 50% ऑफ अमाउंट चाहिए. क्लियर. सो the planters offered to pay only 25% as they thought it would be rejected by Gandhiji. He immediately accepted. अब देखो यहाँ पे जो लॉयर्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया पहले, क्योंकि गांधी जी ने क्या केस फाइल किया था कि हमें 50% ऑफ अमाउंट वी वांट फॉर द पीजेंट्स. लेकिन जो प्लांटर्स थे उन्होंने क्या ऑफर किया कि हम सिर्फ 25% ऑफ अमाउंट वी आर एबल टू पे यू. और उनको लगा था कि गांधी जी विल नॉट एग्री ऑन दिस पोजीशन, बट गांधी जी कंप्लीटली एग्री. उन्होंने फटाफट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, वी आर रेडी फॉर दिस डिसीजन, वी वांट 25% ऑफ एटलीस्ट हमें मिलना चाहिए. Important by giving money, the planter have bowed down to the peasants and had given away their honor too. अब उन्होंने क्या कहा कि इसके साथ 25% के साथ you have to bow down in front of the peasants. एक्चुअली उनका जो मेन मोटिव था गांधी जी का वो क्या था कि जो पीजेंट्स हैं, यानी कि जो इंडियंस हैं, उनके माइंड में क्या है कि दे आर नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट the British authorities. So somewhere the money is not important for him. The fear which is there in the mind of Indian peasants, that was more important for him. क्लियर. वो उस फियर से उनको आज़ाद करना चाहते थे. वो पैसा उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो कहते हैं कि अगर इफ़ यू आर अ वेरी हार्ड वर्कर पर्सन, यू आर एबल टू अर्न मनी, मोर मनी after some time, but the honor which you are losing nowadays in the past few years, you are able to have it again. Clear. So this is the motto and this is the thought process the Gandhiji have in his mind. So British planters left their property within the next few years. These properties were returned back to the peasants. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सून कम टू द एंड. सो जो डिसीजन हुआ था वो क्या हुआ था, उन्होंने डिमांड किया था, इंडियन पीजेंट्स ने 50% ऑफ अमाउंट का डिमांड किया था, लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटी है वो 25% का ही उन्होंने बोला और गांधी जी ने तुरंत उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया. रीज़न कि उनके अकॉर्डिंग द मनी डजंट मैटर, द इम्पॉर्टेंट मैटर इज देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दे आर एबल टू फ्री फ्रॉम दैट फियर.
क्लियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी आती है कि इट इज़ बेटर टू फ्री फ्रॉम फियर इंस्टेड ऑफ हैविंग जस्टिस। क्लियर। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाई डिड द गांधी जी सेड दिस, इट इज़ बेटर टू फ्री फ्रॉम फियर इंस्टेड ऑफ हैविंग जस्टिस। हालांकि अगर हमें फर्स्ट लुक में देखें तो इट सीम्स दैट द जस्टिस वॉज नॉट डन विद द पीजेंट्स। क्लियर। क्योंकि जो 50% अमाउंट है फिर वो 25% में अमाउंट हुआ। तो बट यहाँ पे जो गांधी जी का जो प्रोस्पेक्टिव था वो क्या था कि उनके अकॉर्डिंग अगर इंडियंस को के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि दे आर एबल टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, देन डेफिनेटली इन फ्यूचर वो उस चीज़ के बो डाउन नहीं होंगे। क्लियर। सो एक वो कंडीशन आ गई कि वो जब केस हुआ, इस वो जो एक डील उन दोनों के बीच में हुई थी, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ एंड द इंडियन पीजेंट्स के बीच में, जो शेयर क्रॉपिंग का जो डील था वो ख़त्म हो गया। क्लियर। गांधी वांटेड टू डू समथिंग। अब यहाँ पे वो गांधी जी सिर्फ वो चंपारण के बाद इसी में ही नहीं गए, तो वहाँ पे उन्होंने उस पूरे चंपारण को उन्होंने प्रॉपरली विजिट किया, कंसर्न थे। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी चंपारण की जो उन्होंने बाद में डील भी की। गांधी जी वांटेड टू डू समथिंग टू रिमूव द बैकवर्डनेस इन द विलेजर्स। देखो वहाँ पे टीचर्स नहीं थे, विलेजर स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स नहीं थे, तो उन्होंने 6 प्राइमरी स्कूल्स को खोला, जिसमें से कस्तूरबा जी ने वहाँ पे क्लीनलीनेस का और कम्युनिटी सिचुएशंस को डील किया। A question can be what kind of things they do for the Champaran people. So he tried to open the 6th school in the health condition also. तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सी मेडिसिन थे, castor oil, quinine and sulfur was the only मेडिसिन प्रोवाइडेड ओवर देयर। बट गांधी जी ने किसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट ये कुछ 6 महीने की सर्विस को लेकर उन्होंने जो कुछ छोटे छोटे जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे क्लिनिक्स को लगाया, जिससे कि वहाँ की जो कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन को, चंपारण की हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट इज the women of the area, they used to wear a very dirty kind of साड़ी, because उनके पास they have only one साड़ी or 1 or 2 sarees to wear। तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द गांधी जी ने वो चरखा काट कर अपने जैसे सूती कपड़ा बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उन्होंने वहाँ के लोगों को सिखाया, और इस तरह से वो सूती काटने वाला जो पूरा जो कपड़ा बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, ही वॉज एबल टू कंप्लीट दैट। During the long stay in Champaran, Gandhiji kept a long distance watch on ashram. He sent regular instruction by mail by financial accounts. That means जो चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर ऐसा नहीं कि he just say it and the other person were doing. He surveillance everything, every element in the village. The Champaran incident changed Gandhiji's life. He said that he had done a regular thing. He had put his point across. The Britishers could not order in his own country. So यहाँ पे देखिए क्या है कि उनका जो मेन मोटो था, उन्होंने कहा कि जो चंपारण इंसिडेंट है उनकी लाइफ को कम्प्लीटली उन्होंने, उस इंसिडेंट ने कम्प्लीटली उनके थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया। पहले तक वो इतना फ्रीडम्स में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन आफ्टर द चंपारण इंसिडेंट ही बी रेगुलर इन द फ्रीडम फाइटिंग। क्लियर। एंड उनका एक थॉट प्रोसेस था कि द ब्रिटिशर्स आर नॉट एबल टू ऑर्डर मी इन एनी वे इन माई ओन country. So this is the main important motto of Gandhi ji to fight this case. I hope you understand the chapter, and some questions will be given to you in your homework assignment, and you have to do all the things in your fair notebook. If you have any doubt, you can make a query by making message to me. Okay, thank you.